series of conversations with men and women whose ideas, vision and philosophy help define our contemporary world. My guest today is one of the great contemporary spiritual masters in India. He embodies the highest aspirations of the Vedantic tradition, but has reached out across religions, across social boundaries and barriers to build bridges of understanding between faiths, traditions, and above all has demonstrated a profound social commitment, religion in action. I'm delighted to welcome Swami Avdeshananda Giriji. Swamiji, you represent, and when we look at you, you embody the Vedantic, the Hindu traditions. We have often wondered, is it possible not to believe in any particular religion or faith or the Vedas and just to be a good human being? Life should be transparent, it should be honest, humble, be polite, be quiet. Our thinking should be pure, thought should be divine. If we have, then we can reach, we can attain. So Vedanta, rituals, all method of sadhanas are the way to achieve the divinity. But we can achieve the ultimate goal, ultimate bliss, if we have the transparency, we have the honesty, if we have the pure thoughts. You know, very often there is a lot of emphasis. Swami Vivekananda, talked about the upliftment of the people of India, of Indian Hindu nationalism. And I think that in today's world, where we're looking at a globalized world, where what you do one thing in one part of the world has an impact in another part of the world, isn't nationalism in a sense a source of conflict? कि हम कहते हैं कि this is my identity, I am an Indian first. Shouldn't we be saying that we are citizens of the planet first, we are human beings first, then we are Indians and then we are Hindus instead of the other way around? बिल्कुल सही बात है. हम मनुष्य हैं, इस धरती के जीव हैं, इस ब्रह्मांड में हम एक इकाई हैं, और उसके बाद फिर हमारी कोई नेशनलिटी है, फिर हमारा कोई कास्ट है, फिर हमारा कोई प्रिंसिपल है, और हमारे कोई फिर रिचुअल्स हैं. फर्स्ट भी पहले हम जीव हैं इस ब्रह्मांड के, तो हमें ये गौरव होना चाहिए. और हमारी संस्कृति यही कहती है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, वी आर ऑल वन. आत्मवत् सर्वभूतेषु, हमारी संस्कृति यही कहती है कि पूरा संसार एक परिवार है, वसुधैव कुटुम्बकम. तो ये एक जो सोच है कम से कम हमारे ऋषि मुनियों की, और एक भारतीय सोच, उसमें एक ये बहुत ब्रॉड सोच है. इट्स ए वाइडर थिंकिंग, इट्स ए यूनिवर्स कि पूरा संसार हमारा है. क्योंकि अगर हम सब ऐसे सोचने लगे, then that will reduce conflict. Because there is so much conflict in the name of religion. जो अंतर विरोध हैं, जो परस्पर की श्रेष्ठताओं के प्रति जो दंभ है, अथवा जो हमारे हम सब में, सब संप्रदायों में जो एक ये बात है कि हम अच्छे हैं, या हमारे पास महानता है, या हमारे पास अधिक से अधिक श्रेष्ठताएं हैं, तो वो सब एक तरह से फिर मिट जाती है. There's also a kind of spiritual religious ego कि my religion is better than your religion. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो एक पद का अहंकार है, या जो वस्तु पदार्थों का और सौंदर्य का अहंकार है, अथवा जो एक सत्ता का अहंकार है, उससे भी कहीं बड़ा अहंकार इस बात का है कि मेरा रिलीजन अच्छा है. तो ये मान्य नहीं, ईश्वर को मान्य नहीं. इसी ईश्वर को जो पहली चीज़ कभी मान्य नहीं है, वो है अहंकार. तो अहंकार मान्य नहीं है, वो विद्या के प्रति हो, संप्रदाय के प्रति हो, अपनी श्रेष्ठ मान्यताओं के प्रति हो, तो वो ईगो उसे मान्य नहीं है. आपने ये साधना का शब्द यूज किया, you used the phrase sadhana. जी. And the concept of sadhana is being lost in our society. We have everything is instant. कि वो अगर कोई spirituality भी होगी, तो लोग आएंगे गुरु के पास, उनके चरण छुएंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, और उनको कुछ इंस्टेंट चाहिए, और वो जाके अपना जो साधारण उनकी ज़िंदगी है उसमें वापस चले जाएंगे. So we're looking for the instant. Now you spent many years in the Himalayas meditating.
you have arrived at where you have after a long sadhana. It is not something that happened instantly. ये जो सोच पैदा हुई है इंस्टेंटली कि हमको बिना श्रम साधना के, बिना योग्यता पात्रता के, बिना किसी एक आध्यात्मिक अभ्यास के जो तत्काल शांति मिले, तृप्ति मिले, या हमें आनंद मिले, या हमें जो हमारी अभीप्सा के अनुरूप पदार्थ के प्रति आकर्षण है उसकी पूर्ति हो, तो ये इस युग की सोच बनी है। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, ये युग उपभोक्तावादी संस्कृति का युग है, एक कंज्यूमर एज है। तो व्यक्ति का साधक तो खो गया है, उसका ग्राहक जगह है। तो जो तात्कालिक पदार्थों के प्रति आकर्षण है, वो उनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति चाहता है कि मैं जप तप नियम व्रत उपवास तात्कालिक कुछ ऐसे कर लूँ जिससे कि मुझे राहत मिले, जल्दी मिले। तो ये साधना इसके लिए नहीं है। साधना है अखंड आनंद के लिए, असीम संतोष के लिए, उस अल्टीमेट ब्लिस के लिए। तो आप क्या, what do you recommend for a householder? What kind of sadhana? Of course, there is a balance that we all have to meet our worldly responsibilities, and I think one of the great strengths of the Indian traditions has been the aspects of sadhana, the specific techniques and practices, whether it is bhakti, whether it is hatha yoga or karma yoga or whatever form of practice. हमें कम से कम अपनी पहले इंद्रियों को साधना चाहिए, जो हमारी सेंस है, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो सब का सब हमारा संतुलित हो, व्यवस्थित हो, मर्यादित हो, अनुशासित हो, और वह सब का सब दूसरों को चोट पहुंचाने वाला ना हो। हमारे शास्त्र कहते हैं, खासतौर से वेद कहता है कि हमारा सुनना पहले ठीक हो। भद्रम कर्णे भी श्रुणयाम देवा। Listen should be pure, it should be divine, it should be balanced. Often we say that our speech should be pure, which means that you control your speech. But Yes, how do yes. you control what you listen? देखिए, ये जो अपने प्रति अपनी उत्तेजना, अपने आवेश, अपनी असहजता के प्रति जो एक नियंत्रण है, ये बिना विवेक के नहीं आएगा। तो आपको पहले अपने को एक शांत और व्यवस्थित करके देखना होगा कि हम चाहते क्या हैं। तो अगर हमारा कोई एक गोल स्पष्ट है, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, तब हम उतने उत्तेजित नहीं होते। उसमें ध्यान सहायक बनता है, प्रार्थना सहायक बनती है, चैंटिंग ऑफ मंत्रा सहायक बनती है, मेडिटेशन भी सहायक बनता है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगा, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अच्छा स्वाध्याय कर लिया जाए, यानी अपने प्रति एक समझ पैदा कर ली जाए। स्वाध्याय करते हैं अच्छे ग्रंथ का अध्ययन करके, और अपने को एक ऑर्डर दे दिया जाए एक अच्छे थॉट के साथ, तो व्यक्ति की उत्तेजना शांत होती है। तो जो साधना का पहला चरण है वो इंद्रियों को सहज रखना है। इंद्रियों की सहजता ही पहली साधना की सीढ़ी है। इंद्रियों में सुनना, देखना, बोलना, सूंघना, चखना और छूना, दे आर द 5 स्टेप्स। हमारा देखना कैसा हो, सुनना कैसा हो, बोलना कैसा हो, सूंघना चखना कैसा हो, इसमें हम संतुलन न खोएं। तो अगर हम कम से कम ये संतुलन रख पाते हैं तो वो साधना की पहली सीढ़ी है। Watching a conversation with Swami Avdeshananda Giriji. We'll be right back after a short break. Don't go away. Welcome back to one of the towering personalities of Indian spirituality, Swami Avdeshananda Giriji. We're having a conversation with him. Swamiji, you've talked about restraining the 5 senses. Very often we have the intellectual understanding that we should do that. So, you will teach that don't experience anger, experience love, experience compassion. But when that moment comes, जब वो समय आता है तो हम चुप जाते हैं in the pressure of the moment. तो ये जो आप साधना की बात कर रहे हैं, the training of the mind, तो किस तरह से हम उसको ऐसे internalize करें कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हम आपसे सीखते हैं, वो हम उसको प्रैक्टिस कर पाएं जब हम प्रेशर में होते हैं, जब उसका एकदम स्टिमुलस होता है, जब सोचने का टाइम नहीं मिलता है, एक रिफ्लेक्स हो जाता है। तो दैट इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हैज टू ट्रांसलेट इनटू रिफ्लेक्स। तो ये कैसे होता है? हमारी एक सोच बनी है ऋषि मुनियों के द्वारा, वो ये कहते हैं जो हमारी साधना है वो निर्बाध हो, आबाद हो, दीर्घकाल तक हो, निरंतर हो। इट शुड बी एंडलेस। साधना फॉर लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम साधना जब तक हमारी लाइफ है तब तक हमको एक
ये सोच बना के रखनी है कि हमको दिव्य जीवन जीना है, हमें सहज होकर रहना है, हमें मानवीय आचरण करना है, हमको नैसर्गिक रहना है। ऐसी सोच जब बनती है, पदार्थों के प्रति हमें जब आदर का भाव बनता है, जो प्राप्त है उसमें जब संतोष का भाव हमें बनता है, तो धीरे धीरे करके हम अपने आवेश पर भी नियंत्रण कर पाते हैं। लेकिन जैसा आप पूछ रहे हैं कि अचानक आवेश आया है तो उसे कैसे हम रोकें, अचानक आई उत्तेजना को हम कैसे रोकें, तो बिना विवेक के नहीं हो सकता। और वो विवेक जो है वो हमारे पास है, वो हम, दैट इज द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। How do we cultivate it? How do we strengthen that? You can cultivate through meditation. So you have to go to the meditation way. So explain to us in very simple terms, because meditation has many layers of Yeah, complexity. right. But very simply, what is meditation, which is used so loosely these days? There are all kinds of meditation, all kinds of meditation courses, programs, workshops. What is your understanding of meditation? Meditation with the chanting Vedas mantra, because sometimes the Ved mantras give you the lot of power. It's give to you to your power, vitality force. It's give you the force of the truth. तो अगर आप वो ध्यान करते हैं, जैसे आत्म ध्यान कहें या वो ध्यान कहें जिसमें परम सत्ता के प्रति आप एकीकृत हैं, तो वह ध्यान आपको वो जो फोर्स देता है, जो आपकी अपनी फोर्स है, जो आपकी अपनी ताकत है, जो आपका अपना एक आपकी अपनी जो ऊर्जा है, उससे आप तत्काल अपनी उत्तेजना को शांत कर पाते हैं। How necessary is it to receive this mantra from a spiritual master? You have some popular mantras like the Gayatri mantra, which are commonly used. But how specific and personal are mantras? You must have received a mantra that was specific to you from your guru, from your teacher. So how important is that personal mantra as opposed to the broad-based mantra? Mantra is like a seed. Seeds has some own nature, the own life. But is there a seed that is appropriate for you and inappropriate for me? Or can we both plant the same seed? It depends on the environment. It depends on the earth soil. It depends on. So how do I decide which seed or which mantra is suitable for me? If you have the fertile land, and suppose you have the fertile land, suppose you have the cultivate the seed, then it's grow. It's give you the lot of things. तो मंत्र एक बीज की तरह से है. Suppose there is no fertility, there is no environment, there is no cultivation techniques, it cannot grow. तो मंत्र का भी ये है कि हर संप्रदाय का अपना मंत्र है. वो जितने भारत में संप्रदाय हैं, संसार में जितने संप्रदाय हैं, सबके अपने मंत्र हैं, सबके अपनी विधाएं हैं, सबकी अपनी पूजा की पद्धतियां हैं. तो एक ये निर्भर करता है सच्चे गुरु पर, सच्चे साधक पर, कि वो किन परिस्थितियों में कैसा उसे मंत्र प्रदान करता है. क्योंकि मंत्र बीज है, और बीज के अंदर गोंद, छाल, छाया, वलकल, हरितिमा, फल, फूल, तना, शाखाएं, एयर, वाटर, ये सब चीज़ उसमें छिपी हुई है. एक बीज के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है. तो एक बीज की तरह से है साधना का मंत्र. तो जब गुरु या कोई अच्छा एक स्पिरिचुअल मास्टर, द ग्रेट मास्टर, जब ये देखता है कि इसके लिए ये ठीक रहेगा, अगर वो उसे ग्रो कर ले, तो वो उसके लिए लाभ देता है. You've had a long sadhana yourself. What was your sadhana like when you went to the Himalayas? What prompted you to go? Not every young man is driven by the urge to go out into the mountains and seek eternal bliss or the higher aspirations. मुझे लगता है वो मुझे लगता है it was a divine call. It was the call of the Almighty. So that's why I go there. And then what happened when you went there? What did you do? What does one do in this long process of sadhana? What was your sadhana? Were you meditating? Were you praying to a god? Were you performing rituals? For what are the kind of sadhanas? What is the साधना के journey? 3 मार्ग हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग. भक्ति योग का अर्थ है कि ये सब चीज़ें परमात्मा की हैं, इनका आदर करो. वो नदी है, पर्वत है, वनस्पति है, धरती है, हवा है, या आकाश से जो भी कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, तो प्रकृति के प्रति आप में प्रसाद का भाव रहे, प्रकृति के प्रति आप में संतुलन का भाव रहे, उसका दोहन न हो. ये भक्ति है. ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति. तो जो कुछ भी आपके आसपास है उसे सहेज के रखें, उसका दोहन न करें, उत्खनन न करें, उसका अनादर न करें, या वो केवल आप ही के लिए उसको होल्ड करके न रखें. ये भक्ति है. और ज्ञान का अर्थ है वो सत्ता
जो विजुलाइज नहीं हो रही है लेकिन है, वो सत्ता जो रस दे रही है, शक्ति दे रही है, ऊर्जा दे रही है, ऊष्मा दे रही है, साहस दे रही है, वो जो आपके जीवन का आधार है, जो आपका एग्जिस्टेंस है, वो सत्ता समझ लेना जो इमॉर्टल है, ऑमनी प्रेजेंट है, एवरीवेयर है, उस सत्ता को जान लेना ज्ञान है। और कर्म करते जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब हमारा सहज बन जाए। तो इसमें एक योगी तीनों चीज़ें अडॉप्ट कर। आपकी जो साधना रही, आपकी जो जर्नी रही, तो इसका आपको क्या फल मिला? हम लोग अक्सर कहते हैं निर्वाण, एनलाइटनमेंट। आपको निर्वाण, एनलाइटनमेंट मिला है? वो कैसा होता है, क्या होता है जब? राजीव भैया मैं ऐसा कह सकता हूँ कि साधना के बाद मुझे कुछ सहजता अनुभव हुई है। मुझे कोई पूर्णता मिल गई है, मैं कोई परम सत्ता का अधिकारी बन गया हूँ, या मेरे पास ही सब कुछ आ गया है, ऐसा कहना तो मेरा मिथ्याभिमान होगा, वो तो मेरा बहुत बड़ा अहंकार होगा। लेकिन ये सच है कि जीवन की कभी कभी उन स्थितियों में जो मुझे विचलित करने आती हैं, या प्रतिकूल हैं या विषम हैं, तो उनमें मैं कभी कभी अपने आसपास सहजता पाता हूँ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब कभी प्रतिकूलताएं आती हैं मेरे आसपास, या जब गतिरोध आता है जीवन का, तो तब मैं कहीं एक सहजता पाता हूँ। तो साधना ने मुझे सहजता तो दी है, लेकिन मुझे कोई विराटता मिल गई है और मैंने सब कुछ पा लिया है, मुझे ऐसा भी नहीं लगता। You're watching a conversation with Swami Avdeshanand Ji Maharaj. We'll be right back after a short break. Don't go away. Welcome back to a continuing conversation with Swami Avdeshanand Giri Ji. I think that you have also demonstrated that a lot of spiritual masters who traditionally we have associated with living in the mountains, and you have mentioned Karma Yoga, have people like you have come back into the samsaras in some ways, and you have also preached an intense social action. You have looked particularly at issues of women, you have looked at water, drinking water for tribals, you have given it an activist dimension. Would you say this is a relatively recent phenomena in our Indian Hindu traditions? Because we have traditionally worshipped the mendicant who has gone and sat down and meditated and looked for his own spiritual enlightenment or nirvana or what have you, and has not really engaged with the everyday world. So what has prompted this change, this shift? इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो सर्वत्र है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एक ही कोने में है। वो एक ऐसी सत्ता है जो नित्य विद्यमान सत्ता है। उस सत्ता के प्रति हमारा विश्वास ही उपासना है। अगर हमारा विश्वास बहुत बड़ा है, अगर हमारे विश्वास में ये है कि वो हर पल है, हर क्षण है, तो उसमें हम किसी भी तरीके की उपासना करें, फिर हमारी कोई विधि हो, कोई परंपरा हो, कोई प्रणाली हो, कोई प्रक्रिया हो, कोई विधान हो, कोई ढंग हो, तो जो कुछ भी हमारा ये सब है वो इतना व्यापक है, इतना अलग अलग है कि वो कभी रिचुअल्स दिखता है, लेकिन ये सच है कुछ परंपराएं, कुछ मान्यताएं, कुछ सिद्धांत और कुछ प्रणालियाँ दिव्य हैं। उन प्रणालियों का प्रयोग करने से, उन मान्यताओं के अनुरूप जीवन जीने से, अथवा उन परंपराओं का निर्वहन करने से, अथवा उन सिद्धांतों के प्रति एक पूरे जीवन को समर्पित करने से एक सत्य तक आप पहुँचते हैं। जैसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, बहुत ही सहज है कि हमारी साधना में ये तीन बातें जरूर हों। एक तो हमारी साधना शास्त्र सम्मत हो। शास्त्र का अर्थ है वो जो पहले बातें कही जा चुकी हैं उनके अनुरूप अगर जीवन है हमारा तो आसानी रहती है। दूसरा, महज्जन द्वारा आचरित हो, जो कुछ लोग पहुँचे हैं उसके आधार पर हमारा जीवन हो। और तीसरी एक बात है कि साधना हमारी किसी ग्रेट मास्टर यानी गुरु के द्वारा उपदेशित हो। इसमें कभी कभी लगता है कोई रिचुअल्स हैं, लेकिन आप किसी भी ढंग से उसे प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी तरह से वो आपका है। आजकल इतने बहुत सारे गुरु हैं, आप टेलीविज़न देखिए कि इतने लोग अपना समय खरीद के अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। और हमारे ट्रेडिशन में ये भी है कि कोई भी गेरुआ पहन के कहने लगे हम गुरु हैं, तो जो साधक होता है वो अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि हम गुरु में क्या देखें कि हम इसको माने, हम इसको इनके चरणों पे अपने आप को सरेंडर करें। तो जो गुरु होता है और जो साधक होता है, वो साधक गुरु में उसको क्या ढूंढना चाहिए, क्या देखना चाहिए, so that he is not misled and he is not abused. I mean, that is also happening or exploited by the guru.
So what are the qualities that are looked for? देखिए, ये सच है कि गुरु अलोभ चित्त के स्वामी होते हैं। वो बड़े स्वाभाविक जीवन जीने वाले लोग होते हैं। वो होते हैं जिन्हें परम सत्य का बोध हो गया होता है। उनके आसपास कहीं व्यावसायिकता नहीं होती। वो अपने हित सिद्धि के लिए कोई जीवन नहीं जीते। और इस तरीके का जब कोई चरित्र है जिसमें कहीं अपनी हित सिद्धि नहीं है, जिसमें कहीं लोभ नहीं है, व्यावसायिकता नहीं है, और उसके आसपास के चिंतन चरित्र आचरण में कहीं कोई दोष नहीं है, तो वो अधिक लाभान्वित करता है समाज को। लेकिन ये सच है, आज व्यावसायिकता के इस युग में, वैश्वीकरण के इस या भूमंडलीकरण के इस दौर में, कि जब सब चीज़ें बिक रही हैं और सब चीज़ व्यवसाय के आसपास दिख रही हैं, तो कहीं धर्म में भी और अध्यात्म में भी एक व्यावसायिक दृष्टिकोण देखा जा रहा है, और जो सही नहीं है। In the sphere of political action, the relationship between religion and politics, there have been different views and different traditions in India's own history and in other parts of the world. What is the relationship between religion and politics? You're here in Delhi. You're giving a talk at the Aurobindo Ashram. You're giving a talk at FICCI. You are reaching out to millions of people through television. You also have people of different political hues who are coming and interacting with you. You have addressed the Vishwa Hindu Parishad. You're interacting with, in Delhi with Mrs. Pusharan Kaur, the wife of the Prime Minister, Sheila Dikshit, the Vice President. So across the political spectrum, what are your personal belief in politics and the role of politics in religion? राजनीति एक अनिवार्य अंग है जीवन का, जिसमें आप व्यवस्थाओं को, प्रबंध को और इस सबसे अलग जीवन की आवश्यकताओं को सही देखते हैं। प्रबंधन कैसा हो, जीवन का प्रबंधन कैसा हो, जीवन के लिए आवश्यकताएं क्या हैं, किस प्रकार से जीवन के लिए अनुकूलताएं मिलें। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का अर्थ है व्यवस्था दे, प्रबंधन दे, जीवन के लिए अनुकूलताएं प्रदान करे। और अगर ऐसी कहीं राजनीति है जो सबके हित के लिए है, राजनीति का अर्थ है कि सर्वहारा के सुख का चिंतन, जो प्रत्येक प्राणी के सुख का चिंतन रखता है, वो राजनीति में जाता है। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ। तो उस पे आप कैसे उसको बैलेंस करते हैं आप? नहीं तो सबसे अच्छा तो यही हो कि जो रिलीजियस लीडर हो, जो इन वैल्यूज को एम्बॉडी करता है, वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाए। आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वो होना चाहिए, वो होता नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति जीवन का एक वो हिस्सा है जिससे जीवन सुखमय बनता है, जिसमें आप अपने आसपास में भौतिक की अनुकूलताएं पाते हैं और परलोक की सिद्धि भी। यानी राजनीति वो चीज़ है जो चाणक्य ने कभी की है, जो विश्वामित्र ने की है, जो वशिष्ठ द्वारा प्रेरित रही है, अथवा जो भारत की एक राजनीति कभी रही है, जिससे राजसत्ता प्रेरित रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्रत लेकर, ऐसी सोच लेकर राजनीति में पहुँचे कि मुझे उन व्यवस्थाओं को स्थापन करना है जो सर्वहारा के लिए, सबके लिए, मुझे तुष्टीकरण नहीं करना है, किसी एक वर्ग को प्रसन्न नहीं करना है, केवल मुझे किसी एक विचारधारा का पोषण नहीं करना है, ऐसी कोई राजनीति अगर भारत में आती है तो उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। जी। तो आप उसमें जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनका क्या रोल आप समझते हैं उसमें, कि आप उनको, जो लोग इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बॉडी करते हैं, उनको इनकरेज करिए, और जो लोग जिनके पास, जिन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप को डिस्ट्रॉय किया हो, चाहे अपना हो चाहे किसी और का हो, उनकी वो एटीट्यूड है, जो लोग क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, तो आप क्या उसको, क्योंकि अल्टीमेटली दीज थिंग्स आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, तो आप इंस्टीट्यूशंस को क्या सलाह देंगे, क्या करेंगे? अभी पिछले दिनों की बात है, कहीं कहीं जो चुनाव हुए हैं, वो पंजाब के चुनाव हों या आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव हों, अभी समाचार पत्रों में ऐसा ही पढ़ा कि वहाँ अधिकांश वो लोग भी खड़े हुए हैं जिनके पास में आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। तो एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति, समाज का वो व्यक्ति जिस पर समाज का विश्वास है, ऐसा व्यक्ति समाज से निकल कर आए तो ये सच है कि हमारा ये धर्म बनता है, हम आचार्यों का, हम उपदेशकों का, सुधारकों का अथवा संतों का, तो उसके लिए समय समय पर
हम लोग कार्यशाला आयोजित करते रहते हैं समय समय पर, अपने व्याख्यानों में, प्रवचनों में चरित्र निर्माण की बात कहते रहते हैं और राजनीति की उस धवलता की बात भी कहते रहते हैं जो राजनीति में स्वच्छता रहे, धवलता रहे। लेकिन सच मानिए ये युग राजनीति का युग है, आर्थिक युग है, भौतिक युग है, पदार्थों की प्रियता का युग है। मैं एक और कहना चाहूँगा, ये युग सांस्कृतिक मूल्यों के पतझड़ का युग है और जब पतझड़ आता है, जब ऑटम आता है तो सब चीज़ें झरती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय बसंत आएगा और उसे हम ढूंढ रहे हैं, फिर उस बसंत की हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में तो कम से कम पतझड़ है। जो राजनीतिक दिशा है वो दिशा पतझड़ की दिशा है। तो उसमें कहाँ से फूल खिलें, कहाँ से बसंत आए, कहाँ से हरियाली आए, कहाँ से फिर से सरोवर और जलाशयों में इतना जल आए। तो ये कैसी राजनीति है कि अभी आधारभूत मूलभूत हम जल नहीं दे पाए, प्राथमिक पाठशाला नहीं दे पाए। ये कैसी राजनीति है, कैसी व्यवस्थाएं कि आज तक भी भारत की इस राजनीति ने गाँव को शिक्षा नहीं दे सका है। सड़क नहीं है वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं है। तो कुछ इस तरह से कोई सोच आए कि जो जन जन तक बात पहुँचाए। आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है अभी, आप अपना रास्ता किस तौर से और कैसे देखते हैं कि आपने हिमालय में अपने अकेले बैठ के साधना की, अब आके दुनिया में आप इतना एंगेज कर रहे हैं और आपने कहा कि you would not claim nirvana and enlightenment and the absolute search and truth. What are your goals? What are your aspirations for your life? मैं समाज में एक सभ्यता, संतुलन, चरित्र निर्माण की दिशा में कार्य कर रहा हूँ। कोई मुझसे पूछे कि आप कार्य क्या कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक संस्कारित, सभ्य और चरित्रवान समाज के निर्माण में जुटा हूँ। So that is the external field of action. जी। What is your internal field of growth and is your aspiration that you should get this union with Brahman and your own evolution? ये सच है कि एक सन्यासी का अल्टीमेट गोल तो परम सत्य को पाना रहता ही है। तो मेरा अंततः गोल तो परम सत्ता को पाना है ही, और वो जो मुझे अनुभूत हुआ है उस आनंद में सदा रहने का। तो जो मुझे हिमालय में कुछ अनुभव हुआ, वो जो आनंद की मुझे अनुभूति हुई है या सरलता की, या जो मैंने एक वहाँ रस का अनुभव किया है, वो मेरा अनुभव निरंतर बना रहे और मैं उस अनुभव के साथ भी लोगों को जोड़ूं और पूरे समाज में एक ऐसा व्यक्ति का निर्माण हम कर सकें जो सही व्यक्ति हो, जिसकी सही सोच हो। कोई ऐसा समय भी आ सकता है जब आप सोचें कि अब मैं थोड़े दिन जाके हिमालय में फिर मेरे को रहने की ज़रूरत है? अगर ऐसा आया तो मुझे फिर से जाना होगा। अगर मुझे ऐसा लगा कि फिर मुझे अपने को और शांत करना है, व्यवस्थित करना है, एकाग्र करना है, या मुझे और अधिक ऊर्जा चाहिए, तो मुझे एक भी पल नहीं लगाऊंगा मैं एकांत में जा सकूंगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।